हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। सो टुडे वी विल बी लर्निंग द फाइनल एक्ट विच इज़ एक्ट 5 ऑफ द प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज हम लोग जो है फाइनल एक्ट हम लोग देखेंगे आज। और फाइनल एक्ट में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, देर इज़ नॉट मच इन फाइनल एक्ट। जो भी होना था वो हो चुका है एक्ट 4 में ही। वॉट एवर हैड टू हैपन, ऑल द प्रॉब्लम्स वे सॉल्व्ड इन act 4 itself. Okay, like basically we had two problems. One problem जो था वो है the marriage of Hermia and Lysander. So we finally saw that in act 4. We already saw that Hermia Lysander Hermia love Lysander now, and their problems are solved, and Helena and Demetrius are now in love with one another, so their problems also are solved. So finally we can say that the problems of the four lovers are solved. Second part of the story that we have learned is the love story between Oberon and Titania, right? So Oberon also, now you see, he already took his revenge. Titania understood her fault, and Titania gave the baby boy to Oberon, and Oberon is happy, and now Oberon and Titania, they have now reconciled. Okay, they are in love with one another. ठीक है, तो हम लोगों ने ये सब देखा, and then these were the two main part of the stories. Okay, the problem between the four lovers, and on the other side we have Oberon and Titania's love. Okay, so these problems have been solved already. Now coming to the Athenian workmen, those who were preparing the drama play for the occasion of Theseus and Hippolytus' marriage. Now Bottom also, who got the head of a donkey, that problem has also been solved now. Okay, so I will be giving the links of all the acts now. Here you can check the other videos also, in case if you have not watched. Okay, now act 5. So act 5, as I already told you, there is nothing much in act 5, so I will complete it very fast. Now in act 5 what happens is that okay, let me just tell you one more thing. In act 4 we also see that now Aegeus has also given, Aegeus is the father of Hermia, so Aegeus has also given consent. Aegeus has agreed to the marriage of, or marriage between Hermia and Lysander. Theseus ने समझाया Aegeus को कि ये जो है ये इतना एरोगेंस एटीट्यूड नहीं रख के जो है यू अलाउ योर डॉटर टू मैरी लाइसेंडर. ठीक है, तो जो भी हो, अब हम लोग एक्ट 5 में आते हैं. तो एक्ट 5 में क्या होता है कि एक्ट 5 में थीसियस, हिपोलिटा, फिलोस्ट्रेट. मैं आपको बताऊंगा फिलोस्ट्रेट कौन है. ये एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है. इट्स अ न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड हियर. आई टेल यू हु इज फिलोस्ट्रेट. तो थीसियस, हिपोलिटा, फिलोस्ट्रेट एंड अदर अटेंडेंट्स. अटेंडेंट्स मतलब द वो जो सर्वेंट्स होते हैं, सर्वेंट टाइप्स. ओके, Theseus and Hippolytus, assistants. Okay, assistants, servants. Okay, all of them gather in whose palace? Theseus's palace in Athens. तो सब लोग जो है Theseus, Hippolyta, Philostrate और जितने भी सर्वेंट्स लोग हैं, ये लोग Theseus के राजमहल में, पैलेस में, ये लोग सब लोग एक जगह मीट करते हैं. दे ऑल गैदर इन Theseus' पैलेस विच इज़ इन एथेंस. ओके, तो वो लोग एथेंस लौट के आए. दे हैव रिटर्न टू एथेंस. ओके, and I think all of you know what is the occasion. The occasion is the marriage of Theseus and Hippolyta. दोनों जो है वो they're going to marry. Okay, and Theseus, as we know, is the duke. तो duke मतलब equivalent to a king. तो आप सोच सकते, you can easily understand that king's marriage is greater than any normal marriages. ठीक है ना, जो किंग का जो शादी है, किसी राजा का अगर शादी होगा तो वो सारे जो नॉर्मल लोगों का शादी होता है उससे बहुत ही बड़ा होता है. इट्स अ वेरी जाइगेंटिक काइंड ऑफ अ मैरिज, वेरी बिग मैरिज. ओके, नाउ यू सी कि यहाँ पे जो है हिपोलिटा, शी थिंक्स दैट द स्टोरीज टोल्ड बाय द फोर लवर्स आर वेरी स्ट्रेंज. तो जब वो लोग जंगल गए, व्हेन दे वेंट टू द फॉरेस्ट एंड मेट द फोर लवर्स, तो all of the four lovers said that अरे very strangely I was in love with Hermia, but suddenly I started falling in love with Helena, and then what happened, maybe some kind of a magic happened. Demetrius भी कहता है कि शायद किसी तरीके का मैजिक हुआ होगा और मैं सडनली जो है हेलेना से प्यार करने लग गया. I started for loving Helena suddenly, or earlier I used to love Hermia, but suddenly some magical thing happened and I started loving Helena.
तो ये जो मैजिकल थिंग है, ये हिपोलिटा को लगता है कि इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, थोड़ा सा और लगता है कि हाउ कैन सडनली समबडी फॉल इन लव विथ सम अदर पर्सन. So she feels that these are only imagination of the four lovers. These are only imagination of the four lovers. This cannot be true. The stories told by the four lovers in the forest cannot be true. But Theseus जवाब देता है. Theseus feels that no, लवर जो होते हैं वो थोड़े पागल टाइप के होते हैं. जितने भी लवर्स होते हैं, अगर आप में भी एक लवर वाला एंगल है अगर आपके अंदर, ओके, इफ यू आल्सो हैव अ लवर काइंड ऑफ अ थिंग इनसाइड यू सी दैट देयर इज अ सर्टेन मैडनेस दैट वर्क्स इनसाइड यू. तो थीसियस सेज दैट लवर्स आर लाइक मैड पीपल, ओके, एंड लवर्स हैव मैड काइंड ऑफ माइंड. तो उन लोगों का जो दिमाग होता है, देयर माइंड्स आर वेरी मैड, सो दे कैन क्रिएट सच अनबिलीवेबल स्टोरीज. तो वो लोग इस तरीके का जो है अनबिलीवेबल स्टोरीज, जिसे यकीन करना, to believe such kind of stories becomes quite impossible. But lovers can create such unbelievable stories because their mind is mad. तो वो लोग जो है अपने mad mind से मैड स्टोरीज वो लोग बना सकते हैं. दे कैन क्रिएट सच फैंटास्टिक यहाँ पे मतलब हम लोग जो नॉर्मली जो कहते हैं फैंटास्टिक मीन्स वेरी गुड, एक्सीलेंट, बट हियर फैंटास्टिक मीन्स अनबिलीवेबल. ओके, अनबिलीवेबल स्टोरीज, जिन्हें यकीन करना, टू बिलीव सच काइंड ऑफ स्टोरीज आर वेरी वेरी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव सच काइंड ऑफ स्टोरीज. ठीक है, तो थीसियस कहते हैं नहीं, लवर्स का जो माइंड होता है दैट इज़ अ मैड काइंड ऑफ अ माइंड, सो दे कैन क्रिएट अनबिलीवेबल स्टोरीज. दैट्स नथिंग लाइक टू थिंक मच अबाउट इट. इतना मत सोचो हिपोलिटा, ये तो होता रहता है. छोटे छोटे शहरों में जो है बड़ी बड़ी बातें जो है वो जो होता रहता है. ओके, एनीवेज, या बड़े बड़े शहरों में जो है छोटी छोटी बातें होती रहती है. मे बी दिस काइंड ऑफ अ डायलॉग. ओके, पता नहीं कौन सा मूवी का डायलॉग है. अगर आपको पता चल गया कौन सा मूवी का है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. मैं ज़्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ, दैट इज़ वाई आई कैन नॉट रियली टेल यू. बट हिपोलिटा बिलीव दैट देयर कुड बी सम ट्रूथ इन द स्टोरी ऑफ द फोर लवर्स. तो हिपोलिटा ये कहती है कि नो, दिस कैनॉट बी जस्ट एन इमेजिनेशन. मे बी देर इज सम ट्रूथ इन द स्टोरी ऑफ द फोर लवर्स. तो चारों लवर्स ने जो कहानी बताया, ओके, दैट कैनॉट बी सिंपली एन इमेजिनेशन. ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं हो सकता. देयर कुड बी सम ट्रूथ इन द स्टोरी. तो जो भी हो, दे डिस्कस अबाउट हिपोलिटा एंड थीसियस आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो जस्ट देन व्हाट हैपेंस, द फोर लवर्स एंटर द स्टेज. तो चारों जो लवर है, हर्मिया, लाइसेंडर, हेलेना एंड डिमेट्रियस, ऑल द फोर लवर्स दे एंटर द स्टेज. ओके, तो थीसियस जो है वो ही कॉल्स फिलोस्ट्रेट. अब फिलोस्ट्रेट कौन है? Now who is Philostrate? Philostrate is actually the master of revels. अब revels का मतलब क्या? Okay, note this thing. Revels का मतलब क्या होता है? Master of revels मतलब he is an expert in revels. अब revels का मतलब ये कि actually क्या होता है कि कोई पार्टी वार्टी होता है ना, when there is a party somewhere, especially a party where whiskey, alcohol, this kind of drinks are served. So when people drink, they start like after drinking, it's a party going on, so after drinking they start enjoying dancing ekdam loudly. That is called revels. Okay, revels actually means lively and noisy, full of noisy enjoyment, especially, I'm writing in short, especially while drinking and dancing. तो लोग जो है शराब पीने के बाद डांस करते और चिल्ला चिल्ला के गाना गाते. पीपल शाउट, डांस आफ्टर ड्रिंकिंग, नो. तो while drinking and dancing, that is called revels. Drinking and dancing. So this is actually called revels. Okay, you can note it down. It is in page number 53, second paragraph. You'll find it in second paragraph, page 53. मैं आपको पेज नंबर बता दूँ ऑफ योर टेक्स्ट बुक. पेज 53, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन आप देखिए. रेवल्स वर्ड है यहाँ पे. रेवल्स, द वर्ड रेवल्स इज हियर. ओके, एनीवेज, सो यू सी दैट थीसियस कॉल्स फिलोस्ट्रेट हु इज़ द मास्टर ऑफ रेवल्स. ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि
वो जो पार्टी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, स्पेशल पार्टी में, स्पेशल पार्टीज पीपल एक्चुअली गिव कॉन्ट्रैक्ट टू ऑर्गेनाइजर्स दैट यू ऑर्गेनाइज माई पार्टी. उसे क्या कहते हैं? इवेंट मैनेजमेंट. इवेंट मैनेजर जो ये काम करते हैं उसे हम लोग इवेंट मैनेजर कहते हैं. ओके तो इवेंट मैनेजमेंट होता है. इवेंट मैनेजर को बुलाया जाता है ना कि यू डेकोरेट माई पार्टी. Okay, you decorate my party, you arrange the functions and all these things. So in that way only Philostrate is actually a kind of an event manager. Okay, so Theseus calls him, Philostrate, how is the preparations going on, or how are the preparations going on for my evening's entertainment? It is the marriage of the duke. एक जो है राजा का ये शादी है, तो how is the arrangement going on? Philostrate, come on, tell me. तो Philostrate क्या कहता है? देखिए what Philostrate says. Philostrate takes out a piece of paper. He takes out a piece of paper and gives it to Theseus. तो Philostrate एक कागज़ का टुकड़ा निकालता है और उसे Theseus के हाथ में दे देता है. अब वो पेपर है क्या? In the paper he has made a list of entertainments and asks Theseus to choose whichever he likes. तो एक कागज़ का टुकड़ा है, there's a piece of paper, and in that piece of paper Theseus has made list of entertainments, number 1, number 2, number 3, number 4. तो number 1 में ये entertainment होगा, number 2 में ये entertainment होगा, in number 3 there will be this kind of entertainment. Okay, and Philostrate gives this paper to Theseus, and he tells Theseus that, sir, you choose whichever you like. Okay, and asks Theseus to choose whichever he likes. तो आप ये जो 3-4 मैंने लिस्ट बनाया, I have made 3-4 lists, you choose whichever you like. Now Theseus rejects the first one and the second or the third one maybe. Okay, one of the numbers he selects. तो एक entertainment वो select कर लेता है Theseus. Okay, तो Theseus actually chooses the play Pyramus and Thisbe. आपको याद है Pyramus and Thisbe play कौन कर रहा है? Bottom, Queens, Snug, all the Athenian workmen, they are actually playing the display of Pyramus and Thisbe. Okay, तो Theseus actually chooses this play. नहीं ये Pyramus और Thisbe मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये play मैं choose करता हूँ. And this play has been described as tedious brief scene of young Pyramus and his love, a very tragic mirth. Now let me tell you one thing. This line is from your book, and what does this line mean? तो Philostrate ने क्या किया कि when he made the list, he actually described each of the items of the list. Okay, तो second list में था Pyramus and Thisbe. Say for example, the second list, he wrote Pyramus and Thisbe, and he gave a description also, and he described how that it is a tedious मतलब very long, dull, boring. ठीक है, it's a very tedious. ठीक है, tedious मतलब boring, long, ज़्यादा लंबा play, boring. तो tedious brief play. अब देखिए tedious मतलब अगर long है तो brief मतलब short. Tedious means long and brief means short. So how can a play be long and short together? It's quite funny, you see. If I ask you, say for example, I ask you, okay, you met a boy, yesterday. How does he look? And you are telling me, sir, he's a tall, short boy. Hare, how can a tall boy be short? If he's tall, he's tall, and if he's short, he's short. You say that no, sir, he's a tall, short boy. So it's a kind of a description is something of like that only. Okay, it's a long but short play about two young lovers known as Pyramus and another is his love. It is Thisbe. Okay, and it is of a very tragic mirth. Now यहाँ पे here you have another description actually. Tragic means tragedy, as you know. Tragic means tragedy, and mirth means happy. Now you see Theseus is confused. Arre, first of all you are telling that the play is long and short. Arre, how can a long play be short? Next you are telling that it is a tragedy but it is happy. How can tragedy be happy? एक जो है दुख भरा कहानी खुशी भरा कैसे हो सकता है? How did what made you describe the play in this way? So Theseus is completely confused. Now in the next scene you see Theseus is confused as to how a play can be both tragic and happy at the same time. Now Philostrate explains. Philostrate says that Philostrate explains the Duke. Duke तो आपको पता है यहाँ पे Duke is Theseus. तो Philostrate explains Theseus that the play is very short. तो play तो short है actually, but few words or few dialogues are very long and boring. So that is why I have written it tedious. Tedious मतलब long.
Then Theseus understood. Oh, acha, like that. I hope you have understood. Let me just repeat once again for you. Philostrate explain करता है Theseus को कि Theseus जी एक्चुअली प्ले तो छोटा है, बट यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स है, कुछ कुछ डायलॉग्स है जो बहुत लंबे लंबे हैं, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया कि प्ले तो छोटा है लेकिन कुछ कुछ बिकॉज फ्यू डायलॉग्स एंड फ्यू वर्ड्स आर वेरी लॉन्ग, एंड दैट इज़ वाई आई हैव सेड इट इज़ टीडियस ब्रीफ। ओके, तो लॉन्ग भी है लेकिन छोटा भी है, क्योंकि प्ले छोटा है बट फ्यू डायलॉग्स आर क्वाइट लॉन्ग। तो दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन आई हैव, दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन आई हैव मेड। Then Theseus understands. अच्छा अच्छा, okay okay fine, then let the performers come, performers को आने दो, and Theseus gives the permission, Theseus permission दे देता है कि सारे जो है जितने भी performers हैं इस play के, okay, all the performers let them come in and perform their play। तो Queens enters, Queens जो है वो enter करता है यहाँ पे, and he enters the stage to read the prologue। तो Queens he enters the stage and he is prepared to read the prologue. He has not started yet, but he is getting prepared to read the prologue. Okay, and background में म्यूजिक बजता है, तो in the background a trumpet blows। okay, होता है ना बैकग्राउंड म्यूजिक, अब अगर कोई एक्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, यू नो, म्यूजिक प्लेज इन द बैकग्राउंड। सो हियर अ ट्रम्पेट ब्लोज इन द बैकग्राउंड एज अ पार्ट ऑफ द म्यूजिक। देन यू सी अब क्वींस जो है ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, द क्वींस इज नाउ एड्रेसिंग द ऑडियंस, क्वींस इज नाउ टेलिंग द ऑडियंस दैट इफ बाई चांस द ऑडियंस इज हर्ट बाई एनी सीन देन इट इज़ प्योरली अनइंटेंशनल। आप देखते हैं ना कभी कभी यू वॉच इन मूवीज ऑल्सो, बिफोर मूवीज दे गिव अ डिस्क्लेमर, वो लोग एक डिस्क्लेमर देते हैं दैट ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी आर फिक्टिशियस। दैट मीन्स के जितने भी कैरेक्टर्स है इस स्टोरी में या इस सीरियल में, ये सब जो है काल्पनिक है। ओके, they are fictitious characters and they do not exist in reality। okay, and if by chance any matching is found then it can be treated coincidental, कि इसको एक संयोग जो है coincidence हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वींस एक्चुअली गिव्स अ काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर कि अगर किसी ऑडियंस को हमारे प्ले से इफ़ दे आर हर्ट, अगर किसी ऑडियंस को हमारे प्ले से दुख पहुंचता है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम लोग जो है जानबूझ के आपको दुखी नहीं बनाना चाहते हैं, इट इज़ अनइंटेंशनल। हम लोग तो बस आवर ओनली ऑब्जेक्टिव इज़ टू गिव प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट टू द ऑडियंस। हमारा तो सिर्फ काम है, हमारा तो सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है, आवर ओनली ऑब्जेक्टिव इज़ दैट थ्रू आवर प्ले वी विल गिव यू ओनली प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट एंड नथिंग एल्स। और बाई चांस अगर आप हर्ट होते हैं तो वी आर वेरी सॉरी, लेकिन हम लोग जो है हम लोग जानबूझ के आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस आपको एंटरटेनमेंट देने के लिए, प्लेजर देने के लिए, वी हैव ओनली कम टू गिव यू प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट। तो क्वींस डिक्लेयर्स दिस बिफोर द प्रोलॉग स्टार्ट्स। तो प्रोलॉग स्टार्ट होने से पहले क्वींस ये डिक्लेयर कर देता है। ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बॉटम, तो प्ले जो है इट्स लाइक प्रिपेयर्ड नाउ, बॉटम एंड हिज ग्रुप देन परफॉर्म द प्रोलॉग एंड द प्ले। तो बॉटम और उसका ग्रुप जो आता है स्टेज पे आता है एंड दे परफॉर्म द प्रोलॉग, और फिर वो जो है पिरामस एंड थिस्बे दिस प्ले ऑल्सो दे परफॉर्म। ओके, तो वो लोग पूरा नाटक वाटक करते हैं, पूरा प्ले करते हैं, दे टेल द प्रोलॉग ऑल्सो। तो प्रोलॉग के बाद आता है एपिलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है कि एक इंट्रोडक्शन बिफोर द एक्चुअल प्ले, व्हेन द प्ले इज इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड अ प्रोलॉग। जो एक्चुअल प्ले होता है उससे पहले एक प्रोलॉग आता है, एक डायलॉग आता है, दैट डायलॉग इज क्वाइट लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड अ प्रोलॉग। और एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग इज उल्टा। आई टोल्ड यू in the beginning also, okay, in one of my videos, in one of my videos I have already explained you about prologue and epilogue, but still let me repeat। epilogue मतलब उल्टा, epilogue जो है वो अंत में आता है, एकदम एंड में जाता है वो epilogue। when the play is over, epilogue is being read in the end of the play or at the end of the play। epilogue को सबसे बाद में पढ़ा जाता है। तो प्रोलॉग जो है बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन के हिसाब से पढ़ा जाता है, इट वर्क्स एज एन इंट्रोडक्शन, एंड एपिलॉग इज अ कंक्लूशन। प्ले जब खत्म हो जाता है, व्हेन द प्ले इज ओवर अ लॉन्ग डायलॉग कम्स, दैट इज एपिलॉग। तो वो लोग एपिलॉग पढ़ने ही वाले होते हैं, दे आर अबाउट टू रीड, बॉटम एंड हिज ग्रुप दे आर अबाउट टू रीड द एपिलॉग, व्हेन थीसियस सेड नो 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 नो, एपिलॉग नो नीड, योर प्ले इज फैंटास्टिक, योर प्रोलॉग एंड द प्ले इज फैंटास्टिक, नो नीड टू रीड द एपिलॉग, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी। सो थीसियस सेज दैट ही इज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। Theseus congratulates all
ऑल द एक्टर्स, जितने भी एक्टर्स है, बॉटम, क्वींस, नाग, सबको जो है थीसियस कॉन्ग्रेचुलेट करता है. ओके. थीसियस देन टेल्स के तुमने तो बहुत अच्छा प्ले एक्टिंग किया है, यू हैव डन अ वेरी गुड एक्टिंग, तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू टू परफॉर्म अ डांस ऑल्सो फॉर अस. तो सबको वो कहता है कि चलो तुम लोगों ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, चलो अब थोड़ा हम हमें नाच गाना दिखाओ. ओके. एंड ऑल ऑफ देम लाइक डांस एंड इट्स अ वेरी हैप्पी ओकेजन. तो एटमोसफेयर जो है बहुत हैप्पी है, ओकेजन बहुत हैप्पी है, ऑल ऑफ देम एन्जॉय अ लॉट. तो नाउ इट इज़ मिड नाइट टाइम, जो है रात के 12 बज चुके हैं. ओके, सो इट इज़ मिड नाइट टाइम. तो थीसियस सबको कहता है, थीसियस टेल्स ऑल ऑफ देम दैट नाउ यू गो टू बेड एंड यू टेक रेस्ट बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी मिड नाइट. सो दिस पार्टी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 15 days. तो ये जो फेस्टिविटी है, जो पार्टी है मेरे जो शादी का जो पार्टी है, तो जनरली पार्टी होते हैं 1-2 दिन, बट दिस इज़ द कम ऑन, दिस इज़ द मैरिज ऑफ द किंग, द ड्यूक. तो ये तो 1 दिन या 2 दिन में थोड़ा ही ख़त्म होगा. ओके, it is not going to get over in 1 or 2 days. तो Theseus says that don't worry, you go, you take rest, go to bed, take a good sleep. This party is going to continue for the next 15 days. So if you check your book, you will find the word fortnight. Fortnight मतलब 2 weeks, roughly 15 days. Okay, fortnight मतलब 2 weeks. ये आएगा आपका पेज 54 के पहले लाइन में ही. You check your book, page 54. In the first line itself, you have the word fortnight. तो fortnight मतलब 2 weeks, 15 days. Okay. तो ऑल ऑफ देम गो टू बेड, दे ऑल लीव एंड पक एंटर्स. तो सब लोग जो है वो चले जाते हैं, थीसियस एंड ऑल बॉटम, जितने भी एथेनियन वर्कमैन हैं वो सब लोग चले जाते हैं वहाँ से. ओके. पक अब एंटर करता है. तो स्टेज पूरा खाली, द स्टेज इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, ओनली पक इज़ देयर इन दिस सीन नाउ. सिर्फ पक है और कोई नहीं है, एंड पक इज़ ऑल अलोन. तो पक नाउ एंटर्स एंड इन अ वेरी पोएटिक मैनर, एक बहुत कभी जो है एक मैनर लेके, एक पोएटिक मैनर लेके. ओके, ही टेल्स थीसियस, ही टेल्स दैट थीसियस sacred house will not be disturbed by sounds of animals, ghosts and even fairies like him. तो एक्चुअली पक को भेजा गया है वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए. थीसियस का जो घर है, ओके, थीसियस हाउस, इट्स अ वेरी सेक्रेड हाउस. तो पक हैज़ बीन सेंट देयर टू एक्चुअली क्लीन द डस्ट. तो पक वहाँ पे आता है और पक ये प्रॉमिस करता है कि साउंड्स ऑफ एनिमल्स, अगर कोई भूत है, साउंड्स ऑफ घोस्ट्स एंड इवन फेरीज लाइक हिम, जितने भी फेरीज है, दे विल नॉट बी एबल टू डिस्टर्ब थीसियस. तो थीसियस भी रेस्ट ले रहा होगा घर पे. थीसियस, हिपोलिटा कुड बी टेकिंग रेस्ट बिकॉज होल डे देयर वाज दिस पार्टी गोइंग ऑन, तो एवरीबडी वाज टायर्ड. सो पक promises that neither animals nor ghosts nor even fairies can disturb the house of Theseus. That means can disturb Theseus. So Theseus will be having a very peaceful sleep. Okay. Now अब वहाँ पे क्या होता है, ओबेरॉन एंड टाइटेनिया दे एंटर. ओके, ओबेरॉन एंड टाइटेनिया दे एंटर. ओबेरॉन ऑर्डर्स हिज अटेंडेंस टू गो एंड ब्लेस एवरीवन. तो ओबेरॉन जो है अपने, ओबेरॉन इज king of the fairies, तो obviously blessing of a fairy is needed, right? Blessing of a fairy is needed. So Oberon actually tells his attendants that you go and bless everybody, and I will go and bless the royal couple, Theseus and Hippolyta. Okay, अब Theseus और Hippolyta, they are duke and queen, right? तो नॉर्मल लोगों को तो भेज के वो ब्लेसिंग के लिए नहीं बोल सकता. तो ओपेरॉन सेज, I will myself, I will go and bless Theseus and Hippolyta so that they shall remain in love forever and have a perfect baby. तो मैं जो हूँ Theseus और Hippolyta को bless करूँगा so that they remain in love forever and ever and ever, and then after like some time or a couple of months or after some few months they have a lovely and a perfect baby. So let me go and bless them. Okay. And then Oberon does what? Oberon also gives his attendants field dew and orders them to sprinkle on everyone. So field dew is a kind of a drop, special drop of juice. आपको याद है वो लव इन आइडलनेस का फ्लावर जूस? हाँ, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ जूस ओनली, बट नॉट दैट वो लव वाला जूस. ओके, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जूस. दिस इज फॉर ब्लेसिंग. दिस जूस इज यूज्ड फॉर ब्लेसिंग. क्या blessing? What kind of a blessing? Oberon tells his attendants that attendants take this field dew, take this juice, bottle of juice,
and you sprinkle on everybody so that everybody will be blessed with peace. सब पे जाके छिड़को और सबको ब्लेस करो विथ पीस. ठीक है. तो देखिए ओबेरॉन जो है, स्पेशली ओबेरॉन, यू सी इन द बिगिनिंग वी फाइंड हिम अ विलेन, लाइक बिकॉज ही हैज डन सो मेनी थिंग्स विद टाइटेनिया. Okay, who would like insult his own wife in this way, like Oberon has done to Titania? But he had a plan in his mind actually. Okay, that is why he did all those things to Titania. But Oberon is a very good fairy. Oberon जो है एक बहुत अच्छा fairy है. Okay, he is a very good fairy, and he had a certain kind of an objective behind doing all those things with his वाइफ और टू हिज वाइफ. ओके, तो ओबेरॉन उसके जो जितने भी नौकर चाकर है, फेरीज जो है, फेरीज बाकी जो फेरीज है उनको कहता है ये लो, ये जूस लो और सब पे छिड़क दो. यू स्प्रिंकल ऑन एवरीबडी एंड यू ब्लेस एवरीबडी विथ पीस, सो दैट सब लोग जो है वो शांति से रहे, पीस से रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, सो दैट नो बडी फाइट्स एंड क्वारल्स विथ वन अनदर. ओबेरॉन एंड टाइटेनिया एंड अदर फेरीज देन लीव. तो ओबेरॉन, टाइटेनिया और बाकी फेरीज जो है वो चले जाते हैं स्टेज से. दे ऑल लीव द स्टेज. तो वहाँ पे सिर्फ पक ही रह जाता है. ओनली पक स्टेज देयर अगेन. फिर से जो है पक वहाँ पे अकेला रह जाता है. और जो है पक जो है, ये जो पूरा ड्रामा है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ही कंक्लूड्स द प्ले द मिडसमर नाइट्स ड्रीम ऑन अ हैप्पी नोट. तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम को वो एक हैप्पी नोट में एंड करता है. किस तरीके से कहता है देखिए पक. ठीक है. नाउ हियर स्टूडेंट्स, आई वांट, बच्चों मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो हो यहाँ पे थोड़ा अटेंशन पे करो. ये बहुत ही एकदम टचिंग वाला थिंग है. और ये एक्चुअली इट इज़, Park actually is addressing the audience, but here who is the audience? We are the audience, because we are readers of the play. हम लोग जो है इस play के reader है. We are reading the play, so we are also audience. So when Puck is telling, actually you can imagine that Puck is actually telling to us. Puck हम लोगों से कह रहा है. Okay, and I will be analyzing one more thing. Let me first explain you this part. So Puck then asks the audience. ऑडियंस इज हियर, आई हैव रिटन इन ब्रैकेट, वी रीडर्स आर द ऑडियंस. है तो हम लोगों से कह रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अटेंशन पे कीजिए. आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन दैट पक इज इन फ्रंट ऑफ यू. अ फेरी कॉल्ड पक इज इन फ्रंट ऑफ यू. पंख लगा के एक छोटा सा फेरी जो है आपके सामने खड़ा होके ही इज एड्रेसिंग अस. तो हम लोगों से पूछ रहा है पक, देखिए कि हेलो डियर ऑडियंस, आर यू हैप्पी. पक एक्चुअली अकेला है, उसके आसपास कोई नहीं है. देयर इज नोबडी अराउंड पक. पक इज एक्चुअली टेलिंग अस. मैंने कहा ना, यू कैन इमेजिन दैट यू आर द ऑडियंस. So Puck is telling us that audience, are you happy? If you are not happy, अगर वो ऑडियंस से कहता है कि ऑडियंस अगर आप खुश नहीं हैं, if you are not happy with the play, then you may think it is a bad dream. तो अगर आप खुश हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है. If you are happy, then I have nothing to say. But in case if the audience is not happy, अगर आप खुश नहीं हैं तो कोई बात नहीं, no problem. You think that you were asleep, आप सो रहे थे और आपने बहुत बुरा सपना देखा. और अपने सपने में क्या देखा? What did you see in your dream? You saw that there is Hermia, there is Lysander, there is Helena, there is Demetrius. Okay, so Hermia's father chose Demetrius as Hermia's husband, but Hermia loved Lysander, so they ran away into the forest. और बहुत जो हुआ कहानी में, whatever has happened in the story, so you can think that it was a dream only. ठीक है. इफ़ यू नॉट हैप्पी विद द प्ले, तो आप लोग इसको सपना समझ के भूल जाइएगा कि यू थिंक इट वॉज अ बैड ड्रीम एंड यू फॉरगेट इट. रात का सपना कौन याद रखता है? हु रिमेंबर्स अ नाइट मेयर? हु रिमेंबर्स अ ड्रीम फॉर अ लॉन्ग टाइम? ठीक है. देखिए पक कितना सुंदर तरीके से बोल रहे हैं हम लोगों को. अगर आपको अच्छा नहीं लगा प्ले, यू थिंक इट इज़ अ प्ले गोइंग ऑन, इट वॉज अ प्ले गोइंग, इट वॉज अ ड्रीम गोइंग ऑन. Now Puck promises the audience that if they will like the play and if they clap or applaud, then he will do good to the audience. तो देखिए audience से क्या कह रहा है Puck. What is Puck telling to the audience? Puck actually promises the audience कि देखिए audience, अगर आपको अगर प्ले अच्छा लगा और अगर आपने ताली बजाया, if you clap for me and for the play, for the whole play, A Midsummer Night's Dream, आपने अगर ताली बजाई, if you clap for us, then I will do very good to you. मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूँगा. ये तो पक तो हम लोगों को लालच दे रहा है एक्चुअली. ही इज़ मेकिंग अस ग्रीडी. ओके, ही स्ट्रेटली टेलिंग अस दैट ऑडियंस, देखिए मैं आपको घूस दे रहा हूँ. इट्स काइंड ऑफ अ ब्राइब दैट इफ़ यू विल लाइक द प्ले, अगर आप लोग प्ले को लाइक करते हैं और आप लोग ताली बजाते हैं प्ले के लिए, ओके, देन आई विल डू गुड टू यू. तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूँगा. ठीक है. तो हैविंग सेड दिस, ही टू लीव्स एंड द प्ले एंड्स. तो ये कह के जो है पग भी स्टेज छोड़ देता है. ही लीव्स द स्टेज
और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है. द मिडसमर नाइट्स ड्रीम प्ले एंड्स हियर. ओके, नाउ हियर दिस इज़ अ शॉर्ट एनालिसिस दैट आई हैव मेड. पक का जो ये लास्ट स्टेटमेंट है ना, ये पहला वाला भी, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, यहाँ से ओके कि ऑडियंस अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बुरा सपना समझ के कहानी को भूल जाइए, यू फॉरगेट. और यहाँ पे कहता है कि लेकिन अगर आपको अच्छा लगा प्ले और आपने अगर बाई चांस प्ले को देख के आप लोगों ने अगर क्लैप किया, ही इज टेलिंग अस दैट अगर हम लोगों ने क्लैप किया तो आप लोग भी थोड़ा क्लैप कर सकते हैं पक के लिए. क्यों? पक आपके लिए कुछ अच्छा करेगा, पक विल डू समथिंग गुड फॉर यू. तो ये कह के तो पक चला जाता है. लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ पक इज एक्चुअली शेक्सपियर स्टेटमेंट. ये कहानी किसने लिखा? हु इज़ द राइटर ऑफ दिस प्ले? इट इज़ विलियम शेक्सपियर. तो जितने भी डायलॉग्स है, अब हर्मिया, लाइसेंडर, हेलेना, ऐसे कोई कैरेक्टर्स, इन सबको तो यू नो द एंटायर कैरेक्टर सेटअप जो है किसने क्रिएट किया? हु क्रिएटेड एवरीथिंग? इट इज़ विलियम शेक्सपियर. तो पूरा जो डायलॉग है, जितना भी डायलॉग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, ऑल द डायलॉग्स आर एक्चुअली शेक्सपियर स्टेटमेंट, राइट? तो फाइनल स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं सिर्फ, बाकी भूल जाइए, फॉरगेट द रेस्ट, ओनली द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ पक. तो ये जो है एक्चुअली शेक्सपियर ये कह रहा है कि ऐसी कहानी पे आज के ज़माने में 21st सेंचुरी, in 21st century, do you believe that there will be a kind of a flower juice that you will rub on somebody's eyes, and when that person will wake up and see somebody in front of him or her, then that person will fall in love with that person, with that other person? ऐसा हो सकता है क्या? Do you think? Never. तो it's an incredible play. Okay, unbelievable, incredible play. But Shakespeare actually wants us to enjoy the play. शेक्सपियर चाहते हैं कि हम लोग प्ले को एंजॉय करें, जितने भी जो है. बाकी अब स्पाइडरमैन असल में होता है क्या? डू यू थिंक स्पाइडरमैन एक्चुअली एग्जिस्ट? ऑब्वियसली नो. बैटमैन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल नहीं. सुपरमैन एग्जिस्ट करता है क्या? हम लोगों के इंडियन शक्तिमान गोल गोल घूमने वाला, डू यू थिंक दीज कैरेक्टर्स, these superheroes really exist? Definitely not. But when we are watching these superheroes on television, even after the movie ends, we actually feel that this is real. मैं जब छोटा था मुझे तो लगता था कि स्पाइडरमैन सच्ची का है, बैटमैन सच्ची का है, शक्तिमान इज रियल. ओके, तो बात ये है, नाउ द थिंग इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज दैट शेक्सपियर वांट्स अस टू बिलीव दैट द प्ले, वॉट एवर हैज हैपेंड इन द प्ले इज़ रियल. सब जो घटना है, जितना भी घटना है इस कहानी में, सारे जो है वो सच है. ओके, सो दैट इज़ वाई यू सी थ्रू पक के मुंह से शेक्सपियर ही ये कह रहा है. विलियम शेक्सपियर इज टेलिंग दिस थिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ पक. ओके, तो लास्ट स्टेटमेंट ऑफ पक इज एक्चुअली शेक्सपियर स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिज प्ले. तो अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो पूरा जो घटना है, ऑल एवरीथिंग हैपेंस विद इन वन मिडनाइट. एक समर का मिडनाइट में all the incidents happen in one midnight. That is why a midsummer night's dream. और ड्रीम क्यों? ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ऑफ पक, दिस लास्ट स्टेटमेंट ऑफ पक, इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वाई द वर्ड ड्रीम, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, वाई द वर्ड ड्रीम. दिस पक, the statement of Puck, the last statement of Puck is actually justifies the title of the play, A Midsummer Night's Dream. अगर आपको पूछा गया कि जो Midsummer Night's Dream play है, is it justified? Is the title of the play justified? You can mention the last statement of Puck. Okay, and as if everything happens in the dream. Okay, see, when Titania the problem of Titania solved, when Titania realizes that she was loving a donkey, she thought that it could be a dream. When Bottom wakes up and finds that he has become normal, he also thinks that everything is a dream. So you see, it's a dream within a dream. सपने के अंदर जो है सपना हो रहा है, ऐसा लगता है. ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट ऑफ पक एक्चुअली जस्टिफाइज द टाइटल ऑफ द प्ले, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. तो सब जो है एक मिडनाइट के अंदर होता है. जिसको बिलीव करना है वो तो बिलीव करेगा, और जिसको बिलीव नहीं करना है वो सपना समझ के भूल जाए. यही जो है शेक्सपियर कहना चाह रहा है थ्रू पक. ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्ले. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले. And let me tell you one more thing. If there is anything that you want to ask, you see, there is a comment box always open for you. You can definitely go and ask me there, and I'll try to solve all your doubts. Okay, now
let me give you another information. Page 55 of your textbook. Okay, the important characters have been analyzed. Character analysis. आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं. It is important for exam. And I don't need to explain you this because it is already given in the book. Page 55 of your textbook. Very important for exam. Helena, Puck. Puck का जो असल नाम है वो है रॉबिन गुडफेलो. यहाँ पे डिमेट्रियस, हर्मिया, इगियस, लाइसेंडर, टाइटेनिया, ओबेरॉन. So from page 55 till page 59, 55 to 59 मैं लिख दूँ यहाँ पे. पेज 55 to 59 जो है ये यहाँ पे कैरेक्टर एनालिसिस है. कैरेक्टर एनालिसिस, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए. प्लीज़ रीड these character analysis, very important for exam. Alright, so I have ended the all the acts from the story, from the play A Midsummer Night's Dream. I hope you have liked the story as well as my explanation as well. And finally, please subscribe to the channel. You can like my video. Likes थोड़े कम आते हैं तो इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के बाद और इतना अच्छा जो है स्टोरी सुनाने के बाद एक लाइक तो बनता है. Okay, one like is something which I feel I deserve. Okay, and please share my videos with your friends and tell them if they have not subscribed to the channel, tell them to subscribe. And one more thing, I am soon going to bring some solved questions and their answers for all of you because your exams are coming quite it's quite near. So we will solve questions along with their answers also. Okay, I'm very soon going to bring that thing, don't worry. And I will try to cover all the areas of class 10. तो कुछ ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के, एडिशनल इंग्लिश के, कुछ एडिशनल इंग्लिश के जो है टॉपिक्स अभी बाकी है. आई हैव टू एक्सप्लेन फ्यू टॉपिक्स विच आई हैव नॉट येट एक्सप्लेन फ्रॉम एडिशनल इंग्लिश. English I have completed, but additional English, few topics left from prose and poetry. Midsummer Night's Dream, Rapid Reader I have completed. Okay, let me complete those videos and then I will bring some questions and their answers for all of you, because many of you have been requesting this thing to me on my channel also, on my mail also. Okay, I'll definitely bring the important questions for exams. Then I will solve the textbook questions, in the sense not the textbook questions, मतलब जो पीछे जो questions है वो नहीं, पेज वाइज जो है हम लोग जो है क्वेश्चंस के आंसर्स पूरा बुक रीडिंग करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. विथ लव फ्रॉम ओमनी ज्ञान. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.